everyone. Welcome and thank you for dialing in for the second webinar of Lectures by Legends, organized by VMC Medical Plus, a division of Vidya Mandir classes. VMC is the premier institute which continues to endure a rich legacy of 35 years of unprecedented success. With the advent of VMC Medical Plus in 2018, we are proud to say that we are the first of the first to guarantee success in medical competitive exam, NEET, in India. With 87.5% NEET selection rate, 35% top college selections, including AIIMS, and 328 selections overall, VMC Medical Plus sits on top of the ladder of having highest success rate. We have been blessed to have had significant achievements in the past and are determined to raise the bars high as the years unfold. In today's webinar, we will be highlighting about career prospects in medicine while also aiming at taking care of our health amidst the pandemic. Moreover, we will also take a deep dive into the correct approach for NEET and studying abroad for medicine. By the end of our time today, we hope you feel more comfortable and confident about the plethora of topics surrounding the medical world. Before we get started, I'd like to go over a few items so you know how to participate in today's event. Should you have any questions during the webinar, please pop them into the chat window. We'll address them during the Q&A, and we will also have time for questions at the end. And if you miss anything, don't worry. We'll be sending around the on-demand recording when it's available. On this note, I would like to take this opportunity to welcome our chief guest, Dr. Sanjay Gupta. Dr. Gupta has been a gold medalist in MS Orthopedics. After completing MS from India, Dr. Gupta went for higher studies and training in UK. He attained the highly prestigious and topmost degrees in orthopedics and joint replacement, including MCH from University of Liverpool and FRCS from Royal College of Surgeons of Edinburgh in UK. Subsequently, he did his golden fellowships in knee replacement surgery and further fellowships in hip replacement and sports medicine from UK. Dr. Gupta has been practicing in India for last 10 years, giving his best to the patients and consistently producing excellent results in his field of surgical practice. He is considered to be an expert in knee replacement surgery and master of complex joint replacement surgery. He enjoys great respect and faith from his patients owing to his attentive and caring attitude. Dr. Gupta is also an avid academician and has several national as well as international publications to his account. So we are more than privileged and elated to share the space and time with you. We are also joined by Saurabh Kumar, Director, Academics, Vidya Mandir classes, who will be our presenter for today. Saurabh sir is a gold medalist in academics in Dean Medical Division, having more than 21 years of rich experience in training students. He has mentored and transformed more than 20,000 aspirants till date and still counting. Now, without dilly-dallying, we will turn the time over to Saurabh sir. Thank you, Abhilasha, for the great introduction. And firstly, I would like to thank and welcome Dr. Sanjay, who has spared his time in this tough situation when doctors doesn't even have time to take their breakfast or lunch. This is the situation which is going across the country or in many countries. So I welcome you, Dr. Saab, on behalf of entire Vidya Mandir family. I hope that all the audience who are listening us, who are viewing us from this Zoom link or on our Facebook Live, all of you are safe at your homes, your loved ones, your families and your extended families are safe from this invisible enemy. And we pray to God that you always remain safe. So before we enter into the formal session, I would like Dr. Sanjay to say a few words before we enter into actual question answer session. Right. Thank you, Saurabh ji, and thank you, Abhilasha, and thank you, the whole Vidya Mandir family, for having me here.
I assume that my audience group sitting and watching this video is mostly my dear young students who are from class 11, class 12, and their parents. So at the outset, I'd like to wish them, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो अपने एग्जाम की तैयारी पूरे मन लगा के करें और जो भी उनकी एस्पायर्ड एग्जामिनेशन है उसको पास करें, अच्छे नंबरों से पास करें, अपना नाम रोशन करें, अपनी फैमिली का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं ये सेशन शुरू करना चाहूँगा। साथ ही साथ जैसे सौरभ जी ने कहा है कि अभी हम बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, अभी ये बीमारी ख़त्म नहीं हुई है, इस बात का ध्यान रखना है। वी आर इन द मिडल ऑफ द सूप एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोविड प्रोटोकॉल है, वो सभी ने फॉलो करना है। सेफ डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और रेगुलर हैंड सैनिटाइजेशन, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है। तो सौरभ जी, we can start this session. Yeah, thank you, doctor. So we will start with a question from COVID कि सारे लोग अभी इस समय सबसे ज़्यादा इसी से अफेक्टेड हैं और इसी के बारे में जानना चाहते हैं। एक्चुअली में बहुत सारी रिपोर्ट्स मीडिया में चलती रहती हैं डेली, हमारे सोशल हैंडल्स पर, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, कुछ सही इंफॉर्मेशंस आती हैं और कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशंस भी आती हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जितने भी लोग हमें व्यू कर रहे हैं, चाहे जूम लिंक पे, चाहे हमारे फेसबुक लाइव पे, कि वो लोगों को सही जानकारी मिले कि एक्चुअलिटी क्या है। तो सबसे पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो अभी करंट सिचुएशन है, ये आपको कैसा लगता है कि ये कब तक सेटल डाउन होगी? पीक आ गया है या अभी और कुछ इसमें होना बाकी है? मतलब व्हाट इज योर एस्टिमेशन एज ए डॉक्टर और एज व्हेन यू आर सीइंग सो मेनी पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल आल्सो? सौरभ जी देखिए, मेरे ख्याल से जो मई का महीना था, दैट वाज द वर्स्ट इन दिस पर्टिकुलर वेव व्हिच इज वेव 2। और हमारे जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जो मैथमेटिशियंस हैं, सभी की प्रेडिक्शन थी कि 7th में या कह लीजिए कि 2nd 3rd वीक ऑफ मई तक कोविड जो है, इसका जो ग्राफ है उसमें बहुत स्टीप राइज होगा, बहुत ऊपर जाएगा, and then there will be a fall. And it's a very pleasant surprise to me, I should say, कि हम देखेंगे तो हमारा ग्राफ जो है, कोविड का जो ग्राफ है, डेली केसेस का जो ग्राफ है, वो प्लेट्यू होना शुरू हो गया है और डाउनफॉल होने लगा है। अभी हफ्ता 10 दिन पहले की बात करें तो आप डेली नंबर्स पे अगर देखें तो करीब करीब हमारे नंबर्स 4 लाख से भी ऊपर, आई थिंक 4,50,000 और सो डेली के केसेस होने लगे थे, और आज की डेट में वो 3 लाख के आसपास आ गए हैं। तो ग्राफ में सर्टेनली प्लेट्यू तो आया है, और अगर जो प्रेडिक्शन हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट की है, जो मैथमेटिशियंस की प्रेडिक्शन है, वो सही हुई तो होपफुली ये धीरे धीरे ग्राफ नीचे ही जाएगा और डिसीज का इंसिडेंस धीरे धीरे कम होगा। अब ये देखा जाए कि अगर हम इस वाली वेव को, जिसको हम कोविड 2 वेव कहते हैं, अगर कंपेयर करें कोविड 1 वेव से जो कि लास्ट ईयर थी, तो ये वेव बहुत डरावनी रही है, हम सभी के लिए बहुत डरावनी। इट वाज बिकॉज ऑफ द शेयर नंबर्स। कोविड 1 लास्ट ईयर अगर आप देखें तो उसमें मैक्सिमम केसेस, अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल से दिल्ली के मैक्सिमम केसेस 97,000 कुछ फिगर था, उससे ऊपर नहीं गए थे। और इस बार जो मैक्सिमम फिगर अभी मैंने बताया 4 लाख से ऊपर गए, तो इट्स ऑलमोस्ट 4-fold इंक्रीज इन द डेली नंबर ऑफ केसेस ऑफ कोविड। तो ये मतलब ये अनमैनेजेबल टाइप ऑफ सिचुएशन रही हमारे देश में, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड रहा। और अगर हम ये देखें कि ये सोचें कि क्या ये ज़्यादा डेडली वेव थी प्रीवियस वेव से, तो मेरे ख्याल से ये ऐसा कहना गलत होगा कि ये ज़्यादा डेडली वेव थी इन टर्म्स ऑफ शेयर नंबर ऑफ डेथ्स। अगर शेयर नंबर ऑफ डेथ्स देखा जाए तो अभी का भी मेरे ख्याल से जो हम मीडिया में देख रहे हैं, जो फिगर है, वो करीब 1.12% के आसपास केस फैटेलिटी रेट है।
तो केस फैटालिटी रेट क्या होता है? केस फैटालिटी मतलब कितने परसेंट जिनको बीमारी हुई और वो डिसीज को सकम किए, उनकी डेथ हुई। तो एक्चुअली केस फैटालिटी रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, 1.12 के आसपास में है, बट द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स आर वेरी हाई, इट्स अबाउट 2.5 2.7 lakhs। क्यों? क्योंकि द टोटल नंबर ऑफ डिसीज पीपल आर टू मच, है ना। पिछली बार का मैक्सिमम नंबर गया होगा 1 करोड़ के आसपास, भी ऑलरेडी नियर अबाउट 2.25-3 करोड़ के आसपास हम पहुंच चुके हैं। तो ट्रेंड तो बड़ा ही मतलब ये नहीं कह सकते कि बीमारी से हम अभी निकल गए हैं, लेकिन सर्टेनली देयर आर सम पॉजिटिव साइंस इन टर्म्स ऑफ फ्लैटिंग ऑफ द डिसीज कर्व। एंड होपफुली अगर जो जो एकदम से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्डन आ गया था, हमारे पास बेड्स की शॉर्टेजेस हो गई थी, हमारे पास ऑक्सीजन की शॉर्टेजेस हो गई थी, खास करके जो बॉटल नेक था, जो एक वो था क्या बोलते हैं जिसको रोड ब्लॉक हो गया था, वो था आईसीयू बेड्स की अवेलेबिलिटी। तो वो चीज़ें धीरे धीरे जो समय मिला, सरकार को समय मिला, हेल्थ एजेंसीज को समय मिला, और वो धीरे धीरे चीज़ें अब कंट्रोल में आती हुई सी नज़र आ रही हैं। उम्मीद तो मेरी यही है सौरभ जी कि समय के साथ ये बीमारी जो है धीरे धीरे सेटल हो जाएगी। बट अगेन हैविंग सेड दैट, मैं यही बोलूँगा कि एक बार हम गलती कर चुके हैं। जनवरी के महीने में, जनवरी फरवरी के महीने में हमने देखा बीमारी ख़त्म हुई और हमने अपने गार्ड्स डाउन कर दिए। ऐसा हमने नहीं करना है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि आगे थर्ड वेव आए, नहीं आए। चांसेस तो यही हैं कि थर्ड वेव आएगी। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, जैसे आपने कहा कि चांसेस हैं कि थर्ड वेव आएगी, और कई बार मतलब डेली हम लोग जब कभी भी टीवी खोलते हैं तो मीडिया में या न्यूज चैनल्स में या न्यूज़पेपर्स में भी कंटिन्यूअसली थर्ड वेव की बात होती है, और कहते हैं कि थर्ड वेव में जो है वो जो अंडर 18 वाला ग्रुप है वो ज्यादा अफेक्ट होगा, क्योंकि 18 एंड अबव को तो वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, तो वायरस जो है नया होस्ट ढूंढेगी, और नया होस्ट जो होगा वो 18 बिलो वाला होगा। तो अभी मतलब जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, और ये थर्ड वेव का मतलब इज इट 100% श्योर, या हमें लगता है कि बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा, जो प्रीवियस एपिडेमिक्स हुए हैं, प्रीवियस जो पैंडेमिक्स हुए हैं उसको देखते हुए है, या ऐसा कुछ रिसर्च है जो कहती है कि थर्ड वेव आएगी? देखिए, ये इसमें कोई रिसर्च नहीं है, क्योंकि ये बीमारी कोविड मतलब हमारे जो कोविड का एक्सपीरियंस है वो मेरे ख्याल से एक आया था, जो कोविड की फर्स्ट वेव आई थी, या फर्स्ट वेव ना कहेंगे उसको, इंसिडेंस कहेंगे, वो 2002 के आसपास में आई थी, जिसमें कि कुछ मोर्टेलिटी, बहुत कम मोर्टेलिटीज हुई थी, एक 800 के आसपास लोग मरे थे। और उसके बाद अब ये ऑल ऑफ ए सडन अब 2020 में ये नया कोविड वायरस, कोविड 2 वायरस जो है आया है। तो इसमें वेव को लेकर के मेरे ख्याल से कोई ऐसे आगे रिसर्च तो नहीं है कि वेव आएगी कि नहीं आएगी, बट सर्टेनली आप अगर इसको देखिए, हमारी कंट्री में बीमारी आने से पहले वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में, यूके में, यूरोप में ये बीमारी आ चुकी थी, और वहाँ जो ट्रेंड रहा है, एपिडेमियोलॉजिस्ट जो वहाँ का ट्रेंड देख रहे हैं, वैसा ही, लगभग वैसा ही ट्रेंड इंडिया भी फॉलो कर रहा है, बीमारी के वेव्स को लेकर के, इंसिडेंसेस को लेकर के, डेथ्स को लेकर के। तो अगर आप बात करें यूएसए की, यूएसए में थर्ड वेव आ चुकी है। आप बात करें यूरोप की, यूरोप में भी थर्ड वेव आई है, और थर्ड वेव का जो पीक है वो फर्स्ट 2 वेव से बढ़ा ही रहा है, मतलब हायर पीक, इट वाज अ स्टीपर राइज एंड अ हायर पीक फॉर द थर्ड वेव इन ऑल द कंट्रीज। जापान, यहाँ तक कि जापान की बात करें तो जापान में तो शायद फोर्थ वेव भी आई है, और पीक उसका भी काफ़ी ऊंचा था, काफ़ी हायर था। तो हमें एप्रीहेंड करके चलना है, हमें ये मान के चलना है, एज्यूम करके चलना है, और प्रिपेयर्ड रहना है कि थर्ड वेव आएगी। ना आए, भगवान करे ना आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो वायरस का जो बिहेवियर है, जो उसकी म्यूटेशन होने की नेचर है, म्यूटेशन करने की जो नेचर है, उससे तो यही लगता है कि थर्ड वेव आएगी। और जहाँ तक बच्चों की बात करें तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वेव में क्या हुआ था। फर्स्ट वेव में मोस्टली एल्डरली लोगों को अफेक्ट किया था,
50+, 60+ लोगों को अफेक्ट किया था बीमारी ने। और जब सेकेंड वेव आई तो वायरस वांटेड अ न्यू टाइप ऑफ होस्ट, वायरस म्यूटेटेड इटसेल्फ, वायरस चेंज्ड इट्स फॉर्म एंड affected, infected the different age group, different category। तो अब इस बार की वेव में हमने देखा है यंगर लोगों को बीमारी ज़्यादा हुई है, फेटालिटीज़ भी हुई हैं यंगर एज ग्रुप में। तो ये अगेन मेरे ख्याल से ये हमें मान के चलना है कि आगे ये वायरस अपने फॉर्म को, अपने नेचर को, अपने स्ट्रक्चर को बदलेगा, म्यूटेट करेगा और हो सकता है नया एज ग्रुप अपना होस्ट बनाए। तो इस चीज़ को मान के चलना है और इसके लिए तैयारियां करके चलना है। सरकार इस बात के लिए अच्छी तरह अवेयर है और मेरे ख्याल से हमारे पास अभी टाइम है उस चीज़ की तैयारी करने के लिए। आप लोगों ने सुना होगा जो है नेशनल चैनल पे बताया जा रहा है कि थर्ड वेव की किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। इसमें अभी भी मेरे ख्याल से बॉटलनेक है कि आपके पास आईसीयू बेड्स की कमी है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करना है। टाइम है आपके पास में। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करने का मतलब सिंपली अवेलेबिलिटी ऑफ मोर बेड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मोर नर्सेस, अवेलेबिलिटी ऑफ मोर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एंड ऑब्वियसली मेरे ख्याल से ऑक्सीजन की शॉर्टेज अब नहीं होनी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट इस पे ऑलरेडी काफ़ी कुछ काम कर चुकी है। तो होपफुली वैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो है वैक्सीनेशन। मास एंड स्पीडी वैक्सीनेशन इज द की। आप और कंट्रीज को देखिए, आप इजराइल, सबसे पहला एग्जांपल इजराइल का है। इजराइल में तो आप लोग टीवी पे देखते ही होंगे, लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया है। हालांकि मैं उसको सही नहीं मानता क्योंकि आपकी वहाँ पे इजराइल में 56-57% पॉपुलेशन अभी वैक्सीनेट हुई है और स्टैटिस्टिशियंस का मानना है, सभी का ये मानना है कि जब तक 70% पॉपुलेशन आपकी या तो डिसीज से इम्यून हो जाए, डिसीज होकर के इम्यून हो जाए या वैक्सीनेट होकर के इम्यून हो जाए, जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आती है और जो बीमारी का जो एक वो होता है, वायरस का जो चेन होती है, वो चेन ब्रेक नहीं होती है। ये जो 70% लोग होते हैं, ये मतलब आप यू डोंट रिक्वायर 100% पीपल टू बी इम्यूनाइज्ड। क्या होता है कि ये 70% लोग ही एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं और वायरस को बाकी के 30% में स्प्रेड नहीं करने देते हैं। तो इट्स एक्ट्स एज ए हर्ड इम्यूनिटी। तो जब तक ये हर्ड इम्यूनिटी नहीं आती है, लोगों को अपने गार्ड्स डाउन नहीं करने हैं। America has been successful, USA has been successful in vaccinating about 35-36% of its population, and they have also started giving an advisory कि भाई crowded places में जरूरी नहीं है, सिर्फ crowded places में आप मास्क पहनिए, वैसे आप मास्क मत पहनिए। But again, I don't agree with that. I think the highest precaution has to be taken till you achieve herd immunity. This is very, very important. अब एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि यूएसए में, कनाडा में यंगर मतलब बच्चों में भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। 12 साल के ऊपर वालों में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और इंडिया ने भी ट्रायल शुरू कर दिए हैं। फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल्स वैक्सीन ने शुरू कर दिया है 12 साल से ऊपर की एज वालों में। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मास वैक्सीनेशन, हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने के लिए। दोनों रीजंस हैं। देखिए, बच्चे, आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा कोविड बीमारी उसको हो और वो जो है ना सफ़र करे उससे। तो वैक्सीनेशन उसके लिए भी ज़रूरी है। क्या बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है जी? बच्चों को हम हमेशा से वैक्सीनेट करते आए हैं। वायरसेस के लिए करते आए हैं, बैक्टीरिया के लिए करते आए हैं, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। पोलियो, मीजल्स, मम्स, रूबेला, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, सभी चीज़ों के लिए बच्चों को राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमने वैक्सीनेट किया है। अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी का एक्सप्लोजन इतना फास्ट हुआ है, इतना समय हमारे पास में नहीं है कि हम ये सोच पाएँ, ये असेस कर पाएँ कि बच्चों को वैक्सीनेशन करना सेफ है कि नहीं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म, जो इमरजेंसी मेजर में वैक्सीनेशन ट्रायल्स हुए हैं यूएसए में, एटलीस्ट ये तो रहा कि भाई ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा कोई मेजर बच्चों को प्रॉब्लम्स नहीं आई है। सिमिलरली उम्मीद है हमारा फेज़ 1 ट्रायल ठीक रहा
कोवैक्सीन का। फेज 2 फेज 3 ट्रायल्स भी अगर बच्चों में ठीक रहता है तो हम बच्चों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। जो इस समय हमारे पास प्रॉब्लम है, भारत देश में जो प्रॉब्लम है वो अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स की है, और उस पर काम हो रहा है। बट उसमें नीड ऑफ द आवर ये है कि इसमें बहुत प्रोएक्टिव होकर के बहुत तेज़ी से गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन्स अवेलेबिलिटी। अगर आप लोगों ने डॉक्टर देवी शेट्टी को टीवी पे सुना होगा, उन्होंने एक सजेशन दिया है कि सरकार अगर कुछ एडवांस पेमेंट कर दे जो मास वैक्सीन प्रोड्यूसर्स हैं अब्रॉड के भी, तो वो लोग हमें एडवांस में वैक्सीन्स, उनका अनुमान है कि कुछ नहीं तो करीब बच्चे प्लस उनके पेरेंट्स यानी कि 51 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन को कम समय में 2 महीने के अंदर में वैक्सीनेट किया जा सकता है, जो कि एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सजेशन है और मैं इस सजेशन को वेलकम करता हूँ। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि वैक्सीनेशन ही जो होगा वो शायद सबसे बड़ा गार्ड होगा विद द गार्ड व्हिच वी आर डूइंग राइट नाउ। कुछ बड़े बहुत कम केसेस में, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी देखा जा रहा है कि लोगों ने वैक्सीन की 1 डोज ले ली या दोनों डोज ले ली, और उसके बाद भी दोनों डोज के बाद भी कुछ लोग जो है इन्फेक्ट हो जा रहे हैं। तो ऐसे में आप मतलब ऑब्वियसली वैक्सीन की एक एफिकेसी है, इट्स नॉट 100%, तो उसमें क्या मोर्टेलिटी रेट कम होता है? क्या बेनिफिट होता है कि अगर ऐसा जिस बंदे ने दोनों वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं और वो अफेक्ट हो जाता है जब कोविड वायरस से, तो उस केस में कैसे देखते हैं उसको? जी देखिए, पहले तो बिफोर वी डाइव इनटू द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आई वुड लाइक टू से एट द आउटसेट कि प्लीज वैक्सीनेशन करवाइए। देयर इज नो अदर सोल्यूशन। वैक्सीनेशन करवाना बहुत बहुत निहायत ही जरूरी है। जहाँ तक आपने बात कही कि लोगों ने 2 वैक्सीनेशन ले लिए उसके बाद बीमारी हो गई, या 1 शॉट लिया उसके बाद बीमारी हो गई, तो देखिए आपको समझना है कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीन की एफिकेसी क्या है और इफेक्टिवनेस क्या है, दोनों में फ़र्क है। तो जो हमारी वैक्सीन्स इंडिया में जो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, कोवैक्सीन हुई, उसकी एफिकेसी है करीब 81-81% के आसपास में। और जो कोविशील्ड है उसकी जब शुरू में लॉन्च हुई थी तो कहा गया था कि जी इसकी एफिकेसी है 70% के आसपास में, जब 4 वीक इंटरवल में दिया जा रहा था। और अब वो दी जा रही है, अब सजेस्ट किया गया है कि 3 मंथ्स इंटरवल पे 3 to 4 मंथ्स मेरे ख्याल से, हाँ 3 to 4 मंथ्स इंटरवल में देनी चाहिए। और अगर ऐसा किया जाता है जैसा कि यूके में किया गया, एस्ट्राजेनेका ग्रुप ने जो यूके में किया, इसको इंटरवल बढ़ाया, तो वहाँ पे दे फाउंड दैट द एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन रोज अप टू अबाउट 80+%। तो हमें ये समझना है कि एफिकेसी का मतलब क्या होता है। एफिकेसी का मतलब होता है कि ये वैक्सीन आपकी ये नहीं कि मान लो कोई वैक्सीन 80% किसी की एफिकेसी है, तो ऐसा नहीं है कि 80% लोग प्रोटेक्टेड हैं और 20 लोगों को बीमारी हो जाएगी, 100 में से 20 को हो जाएगी, 80% प्रोटेक्टेड है, ऐसा नहीं होता है। एफिकेसी का मतलब है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ही अगर वायरस का एक्सपोजर होता है तो 80% चांस है कि उसको बीमारी नहीं होगी, 20% चांस है कि उसको बीमारी हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर ये 100% होता तो भाई आपको फिर डरने की जरूरत नहीं। आप जो भी मास्क बिना मास्क पहने घूमिए, क्राउड में घूमिए, कुछ भी करिए, आपको बीमारी नहीं होगी और आप मरोगे नहीं, आप बच जाओगे। तो 20% चांस फिर भी है कि आपको बीमारी होगी। इसीलिए इम्पोर्टेंस है, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट यू अडॉप्ट, यू एक्सरसाइज द कोविड प्रोटोकॉल, बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक आपने बात कही कि लोग सकम किए हैं, वैसे ऐसे इंसिडेंसेस काफ़ी कम हैं कि जिनको, हालांकि कुछ नॉन पर्सनैलिटीज़ हैं, डॉक्टर्स में ही हैं जो लोग सकम किए बीमारी को, और खास करके डॉक्टर्स में ही ऐसा हुआ क्योंकि उनका रिस्क ऑफ एक्सपोजर वाज वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। वो दिन रात इस तरह के कोविड पेशेंट्स के टच में थे, और डॉक्टर्स में ही पर्टिकुलरली इस तरह की चीज़ हुई कि वैक्सीनेट होने के बाद भी देयर वाज मोर्टेलिटी। बट हुआ यूं कि मेरे हिसाब से जनवरी वैक्सीनेट हो गए आप,
आपको 2 डोज लग गई, come January, come February, people, almost there was a notion in the country, including our health minister, including our government, and including, I would include myself in that as well. Everybody had a notion कि जी बीमारी खत्म हो गई, बीमारी अब गई, इंडिया से बीमारी गई, इंडिया में इम्यूनिटी है, लोगों स्ट्रांग है, लोग अच्छी खासी इम्यूनिटी है इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, और बीमारी चली गई. आई थिंक दैट वाज द मिस्टेक, दैट वाज अ वेरी बिग मिस्टेक कि लोगों ने आप वैक्सीनेट हो गए, आपने अपने गार्ड्स डाउन कर दिए, और you succumb to the disease, you got COVID, and you had adverse consequences of the disease. तो ये समझना बहुत जरूरी है. तो अभी भी मैं कहूँगा कि आप ये ना सोचें कि वैक्सीनेशन आपको हो गया, उसके बाद भी बीमारी हो गई तो क्या फ़ायदा जी वैक्सीन लेने का. ऐसा नहीं है. हमारे साइंटिस्ट, मेडिकल रिसर्चर्स ऐसा भी कह रहे हैं कि आप अगर 2 डोज वैक्सीन की लेते हैं, या जो भी रिक्वायर्ड डोज है किसी पर्टिकुलर वैक्सीन की, स्पुतनिक वगैरह जो भी है, जो भी रिकमेंडेड डोज है, वो आप लेते हैं, तो होपफुली एंड आई से होपफुली कि आपको जो डिसीज की सिवेरिटी है, यानी कि जो chances of injury to the most vital organ, lungs, is much less in vaccinated people as opposed to non-vaccinated people. तो इसलिए there is no doubt about it कि आपको वैक्सीन लेनी है. सौरभ जी. ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, और ये मैंने खुद भी मतलब ऑब्जर्व किया कि मैंने वैक्सीनेशन किया था और मैं खुद कोविड पॉजिटिव हुआ, तो वायरल लोड ज्यादा होने के बाद भी मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. तो ये बात बिल्कुल सही मैसेज है कि हमें किसी भी अफवाह में या किसी भी बात पे विश्वास नहीं करना है, और अपने आप को वैक्सीनेट करना है, अपने फैमिली को वैक्सीनेट करना है, और इसमें कोई भी दोबारा सेकंड थॉट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है. अब जैसे इस समय लोग कोविड से मान लीजिए जैसे कोई इन्फेक्ट हो जाता है, तो एक इसमें 2-3 चीजें आ रही हैं कि कब उसको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, और स्टेरॉइड्स का यूज कब होना चाहिए. और जब स्टेरॉइड का यूज हम करते हैं तो जैसे शुगर हाई हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है, तो खाने में रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, तो उसमें किस तरीके से आप पेशेंट को या पेशेंट की जो फैमिली है उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए या अप्रोच करना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि देखिए, आपको फिगर्स मैंने दिए, डाटा मैंने दिया कि कोविड बीमारी 99% लोग इस बीमारी में ठीक हो जाते हैं. तो कोविड आपको हुआ, सबसे पहला काम ये है कि आपने पैनिक नहीं करना. अब तो उतनी बेड्स की शॉर्टेजेस भी नहीं है, पैनिक रिएक्शन वैसे भी थोड़ा सा कम, ऑक्सीजन की बेड्स की है, मैं ये नहीं कहता नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली दिल्ली एनसीआर में थोड़ी सी सुविधाएं, महाराष्ट्र में सुविधाएं बेटर हो गई हैं. तो पैनिक नहीं करना है, क्योंकि आप पैनिक करेंगे, आप स्ट्रेस में आएंगे, स्ट्रेस में अपनी बॉडी की इम्यूनिटी वैसे ही थोड़ी कमज़ोर होती है, तो आपने पैनिक नहीं करना है. स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं. आजकल तो ज़्यादातर आम पब्लिक में, डॉक्टर्स में सर्कुलेट हो चुका है कि आपने किस समय क्या करना है. फिर भी मैं रिकैप्चुलेट करूँगा, आप लोगों को बताना चाहूँगा. देखिए, आपको कोविड होता है तो 99% तो आप ठीक हो जाओगे, पहले तो ये मान के चलना है. तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान, कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़ों का बराबर ध्यान रखना है. क्या है जी वो 2 चीज़ें? पहला है आपका SpO2 लेवल, यानी कि ऑक्सीजन लेवल. आपके घर में ऑक्सीमीटर होना चाहिए, आपको SpO2 अपना नापते रहना है. दिन में प्रेफरेबली 6-6 घंटे पे नाप लें तो बेटर है. जहां आपका SpO2 94 के नीचे जाता है, that is the time when you need to seek medical attention or maybe hospitalization. जब बहुत ज़्यादा बेड्स की शॉर्टेजेस हो रही थी, तो ये भी था, एम्स की गाइडलाइंस आई थी कि 92% तक के लोग घर पे रह सकते हैं, एज लॉन्ग एज उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है फॉल नहीं कर रहा है, 92 के नीचे नहीं जा रहा है, और वो जनरली वेल है, सिक नहीं है. तो ऑक्सीजन सैचुरेशन is the most important determinant to decide whether you need hospital admission or not. I'm sure लोग जानते होंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसे देखना होता है. आपको राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर या मिडिल फिंगर में फिंगर को वार्म करके, फिंगर ठंडी है तो सैचुरेशन वैसे ही गलत आएगा. और people must be knowing about 6-minute walk test, 3-minute walk test, hidden
हाइपोक्सिया लंग्स में तो नहीं है। इस चीज़ को देखने के लिए अगर 6 मिनट्स वॉक टेस्ट के बाद में आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 2-3% कम होता है, तो मे बी यू हैव हिडन हाइपोक्सिया और यू नीड एडमिशन एंड मेडिकल अटेंशन। एक ये हो गया। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर शुरू में पहले 3-4-5 दिनों के अंदर हाई ग्रेड टेम्परेचर आना स्वाभाविक है। You will get a temperature of around 102, 103 degrees. A lot of people do not get, they get around 99, 100. But, especially younger people who have a strong immunogenic response to the virus load, they develop high grade temperature. और ये टेम्परेचर क्योंकि ये इम्यूनोजेनिक फेज है, इसमें आपकी बॉडी वायरस से फाइट कर रही है, तो इम्यूनोजेनिक फेज है, टेम्परेचर होना स्वाभाविक है। और एक ये अच्छी बात है, अगर टेम्परेचर हो रहा है तो डोंट वरी, आप डोलो लीजिए और जो है अपने आप को घर में मॉनिटर करिए। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर 5 दिन के बाद और मोर प्रिसाइसली इनटू द सेकेंड वीक अगर आपका हाई ग्रेड टेम्परेचर परसिस्ट करता है, तो दैट इज द टाइम व्हेन वन हैज टू बी वरीड अबाउट इट। और उस समय आपने ऑब्वियसली मेडिकल एडवाइस के अंतर्गत डॉक्टर से कंसल्ट करके, दैट इज द राइट टाइम, एज यू आस्क कि स्टेरॉइड कब शुरू करना चाहिए, that is the right time to start steroid medication. Steroid की शुरुआत पहले 5 दिन के अंदर करने से नुकसान है, बॉडी को डैमेज होता है और डिसीज की सिवेरिटी बढ़ती है। राइट टाइम पे शुरू करने से हाईली लाइक्लीहुड है कि इंसान की जान बचती है। ठीक है, तो वो टाइम होता है स्टेरॉइड शुरू करने का। और फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे आप रिस्पॉन्ड करते जाते हो, स्टेरॉइड के डोज को टेपर किया जाता है। बहुत ही शॉर्ट पीरियड में जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आता जाता है, स्टेरॉइड के डोज को कम करके टेपर करके खत्म किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी अगर आप घर में हो तो आपको मोरलेस मेरे ख्याल से लोगों को मालूम है कैसे आपने आइसोलेशन में रहना है। आजकल तो थोड़ी सी इसकी इंफॉर्मेशन भी अपडेट होती रहती है कि वायरस कहाँ पर है, वायरस सरफेस पे है कि वायरस ड्रॉपलेट्स में है कि वायरस एयर में है। अब लेटेस्ट जो एविडेंस है वो ये सजेस्ट करता है कि वायरस एयर में है, इट्स स्प्रेड एवरीवेयर। तो ये भी वेंटिलेशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप जहाँ जिस कमरे में हैं वहाँ वेंटिलेशन, एयर सर्कुलेशन बराबर बना हुआ होना चाहिए, जिससे कि फ्रेश एयर आए और जो भी कुछ वायरस लोड है वो वॉश ऑफ हो जाए, बाहर चला जाए। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है इंसान को ध्यान में रखनी चाहिए। राइट। तो अभी जो स्टेरॉइड से जुड़ी हुई एक जो खबर आती है वो आप ही इसको ऐड करेंगे कि स्टेरॉइड लेने से ब्लैक फंगस या म्यूकोमाइकोसिस जिसे कह रहे हैं वो आ रही है। तो ये म्यूकोमाइकोसिस क्या है और ये क्या 100% फेटल होती है, इससे लोग ठीक भी हो सकते हैं? हाँ सौरभ जी, ये पहले बता दूं आपको कि ये फेटल तो बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर केसेस में फेटल होती है। फेटल ये डिसीज फेटालिटी जब होगी जब ये डिसीज एक्सट्रीम केसेस में। म्यूकोरमाइकोसिस इज अ फंगस इन्फेक्शन, जैसे कि कोविड वायरस का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फंगस का इन्फेक्शन है। एक्सट्रीम स्टेजेस में अगर ये फंगस ब्रेन तक पहुंच जाता है या लंग्स तक, ये टारगेट ऑर्गन्स, एक्सट्रीम टारगेट ऑर्गन्स हैं, अगर वहां तक पहुंच जाता है तो फेटालिटी वाली बात आती है या डिसीज फेटल हो सकती है क्या ये? तो ये फंगल इन्फेक्शन है। फंगस, म्यूकोर मतलब फंगस, माइकोसिस मतलब बॉडी का ग्रो करना। तो फंगस कहाँ से आता है जी? फंगस स्पोर्स से आता है। फंगस हमेशा स्पोर्स में रहता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके स्पोर्स में बैठा रहता है फंगस। और फंगल स्पोर्स कहाँ पर होते हैं? फंगल स्पोर्स हवा में भी होते हैं, बट जो ज्यादातर फंगल स्पोर्स होते हैं वो सॉइल में, प्लांट्स में, मैन्योर में, जो हमारा वो होता है खाद वगैरह होती है, उस तरह की चीज़ों में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जब ये फंगस एंटर करता है बॉडी में, मोस्टली एंट्री इसकी नेजल रूट से होती है। ये फंगस बॉडी में एंटर करता है नेजल रूट से, और इसके जो टारगेट ऑर्गन्स है, वो पहला टारगेट ऑर्गन है आपका साइनस, जो हमारे स्कल के अंदर में जो साइनसेस हैं जितने, जो जब हमें सर्दी जुकाम होता है, साइनोसाइटिस होती है, हेडेक होता है, तो उन एयर स्पेसेस में, बोन के अंदर जो एयर स्पेसेस हैं उसमें जाके लॉज होता है, साइनोसाइटिस करता है, जिससे कि इंसान को जनरली जो पहले सिम्टम्स होते हैं वो हेडेक वगैरह होता है, एक्सेसिव हेडेक होता है।
ये उसके अलावा यहाँ से ये आँखों में जाता है तो आँखों में वाटरिंग होती है, ब्लड विजन हो सकता है, आपको ब्लैकिश डिस्कलरेशन स्किन पे, नेजल ब्रिज पे, नॉस्ट्रिल्स के चारों तरफ, ऊपर मुंह के अंदर पैलेट में स्वेलिंग दिख सकती है, आंखों में स्वेलिंग नजर आ सकती है। तो ये सब जो ये म्यूकोरमाइकोसिस के साइंस हैं। लेकिन ये जो डिसीज़ है, इसकी मैं कहूँगा कि इस समय थोड़ी सी अच्छी बात है कि इस समय इसकी अवेयरनेस हो गई है लोगों को, और इसके सभी हॉस्पिटल्स में प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं कि डिसीज को अर्ली डिटेक्ट करना और आगे बढ़ने, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप म्यूकोरमाइकोसिस फंगस के लिए हमारे पास एंटी फंगल मेडिकेशंस हैं, जिससे कि फंगस को आप बढ़ने से रोक सकते हैं। जहां मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा था, प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट हो गए हैं। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में जो कोविड पेशेंट्स हैं उनका रेगुलर चेकअप हो रहा है, उनकी आईज का चेकअप हो रहा है, उनका नोज का चेकअप हो रहा है। नोज के चारों तरफ ब्लैकिश डिस्कलरेशन अगर होता है, माउथ में होता है, तो इसको अर्ली पिकअप किया जाता है और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाता है। अब एक्सट्रीम केसेस में मान लीजिए जो कुछ केसेस हो चुके हैं, जब लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं था, तो आपने सुना होगा कि इस बीमारी ने आँखों को, आईबॉल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया और लोगों को आईबॉल की सर्जरी करवानी पड़ी, उनकी जान बचाने के लिए आईबॉल तक निकालनी पड़ी। तो मतलब है, ये डिसीज़ है तो सही, मतलब मॉर्बिडिटी काफ़ी है डिसीज़ में, मॉर्टेलिटी नहीं कहेंगे लेकिन मॉर्बिडिटी तो है। तो ये है। अब ये किन किन पेशेंट्स को होती है, किस पेशेंट ग्रुप में होती है, तो इसके एट रिस्क ग्रुप क्या है? इसके एट रिस्क ग्रुप है अनकंट्रोल्ड लॉन्ग टर्म डायबिटिक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, जैसे कि कैंसर पेशेंट जिनको इम्यूनोसप्रेशन दवाइयाँ चलती हैं, और बहुत से ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको इम्यूनोसप्रेशन और रीज़न से चलता है, जैसे कि गठिया वगैरह, रिमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह। तो वो पेशेंट्स थोड़े से एट रिस्क ग्रुप है, और उनमें हमें खासा ध्यान रखना है कि इन चीज़ों पे, इन सिम्टम्स का ध्यान रखना है, उनकी शुगर कंट्रोल अप्रोप्रिएट रहे। और इसके अलावा दूसरा एट रिस्क ग्रुप है जो कि बहुत ज़्यादा देखा गया है, वो कोविड पेशेंट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी पे रहे हैं। लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी का जो रीज़न सोचा जा रहा है कि क्यों उनको कोविड हुआ, तो भाई अगर वो जो ह्यूमिडिफायर होता है जिसमें से ऑक्सीजन नाकों में जाती है, तो वो ऑक्सीजन, अगर वो वाटर, अगर ह्यूमिडिफायर का वाटर अगर क्लीन नहीं है, तो हो सकता है फंगल स्पोर्स उसमें से गए हों। तो एक वो चीज़ है, ध्यान रखना है कि वहाँ पे, अब तो मेरे ख्याल से सभी हॉस्पिटल्स में डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करना शुरू हो गया है, तो दैट इज़ अनदर मेजर टू प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शन। थैंक यू। अब डॉक्टर साहब, आप जैसे आपने एमबीबीएस किया इंडिया से और इतनी सारी डिग्रीज आपने अचीव की बाहर की कंट्रीज से, तो जो अभी बच्चे जो हमारे एस्पायर कर रहे हैं मेडिकल की एंट्रेंस को, और पोस्ट एमबीबीएस वो बाहर जाना चाहें या इंडिया में पढ़ना चाहें, तो आप आज के सिनेरियो को देख के, मतलब जो करंट सिनेरियो है, जो हमारे डॉक्टर्स अब आज से 5 साल बाद एमबीबीएस करके निकलेंगे, या 7 साल बाद या 10 साल बाद जो उनकी पढ़ाई पूरी होगी, तो उनको आप कैसे गाइड करना चाहते हैं कि वो किस फील्ड में जाएं? क्या अभी अपकमिंग फील्ड्स हैं? एमबीबीएस इंडिया से करना है, पीजी बाहर से करना है, मतलब किस तरीके से इसको आप करंट सिनेरियो में इस जनरेशन को समझाना चाहते हैं? सौरभ जी, देखिए, बहुत, अब मेरे ख्याल से it's nice that we are coming out of COVID and talking about our kids who have joined us. I'm glad you have raised this question. They would certainly want to know. देखिए, मैं सभी बच्चों को कहूँगा कि जैसा मैंने शुरुआत में एट द आउटसेट कहा कि हार्ड वर्क, कमिटमेंट, फोकस, डिटर्मिनेशन, ये चारों चीज़ें आपके पास हैं, तो दुनिया में आपको तरक्की से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी जो हैं, जो लोग एस्पिरेंट्स हैं, मेडिकल नीट एस्पिरेंट्स हैं, वो मेडिकल में उनको, मेडिकल कोर्सेज में, मेडिकल कॉलेजेस में उनको एंट्री मिले। और it makes a very good sense to do MBBS from India. हमारी इंडिया की MBBS की पढ़ाई बहुत बढ़िया है। हमारी
जो थ्योरेटिकल टीचिंग है प्लस प्रैक्टिकल टीचिंग है ड्यूरिंग एमबीबीएस, जो क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती है, उसमें जो नॉलेज आप अटेन करते हो, अचीव करते हो, दैट इज अनकम्पेरेबल एनीवेयर। समझ गए? तो पहली चीज ये है। एमबीबीएस के लिए भी बहुत सारे लोग ज़्यादातर तो यूके जाते हैं, लेकिन आई माई सेल्फ डोंट थिंक दैट इट्स अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि कुछ हमारे एमसीआई या जो अब चेंज होकर के एनएमसी हो गया है, उसकी गाइडलाइंस वगैरह चेंज हो गई हैं। आप अगर एमबीबीएस बाहर से करते हो और वापस इंडिया में आके प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो यू वुड हैव टू सिट अनदर एग्ज़ाम, जिसको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। वो नहीं करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन, एमसीआई का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा और आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू डू एमबीबीएस फ्रॉम इंडिया। अब बात करते हैं एमबीबीएस के आगे की। देखिए, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीबीएस के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है आपको। आजकल पोस्ट ग्रेजुएशन करना निहायत ही ज़रूरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमडी और एमएस, इंडिया में जो मेडिसिन साइड से पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उनको एमडी कहा जाता है, जो सर्जिकल साइड से करते हैं उनको एमएस कहा जाता है, मास्टर ऑफ सर्जरी, मास्टर ऑफ मेडिसिन। तो एमबीबीएस, एमडी और एमएस करना अभी मतलब करंट सिचुएशन में तो खैर सिनेरियो दूसरा ही है। करंट जो कोविड, मैं तो आज से 5-7 साल के बाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एमबीबीएस करने में आपको 4.5 साल का एमबीबीएस होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, 5.5 साल लग जाते हैं। तो मैं उस समय की फ्यूचरिस्टिक बात कर रहा हूँ कि फ्यूचर में आपको जो है सुपर स्पेशलाइजेशन, एमडी-एमएस और उसके बाद में जो सुपर स्पेशलाइजेशन होता है वो भी करना ही होगा, क्योंकि वही नॉर्म है, वही ट्रेंड है। आप चाहे तो एक जनरल फिजिशियन भी बन सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट क्या है कि मेरा अपना मानना है कि सुपर स्पेशलाइजेशन करना चाहिए लोगों को, और उसका एडवांटेज ये है कि आप एक रेस्ट्रिक्टेड फील्ड में, क्योंकि मेडिसिन इज वास्ट, आप एक छोटी सी आंख ले लो, आंख के अंदर ही इतनी मेडिसिन है, इतनी पढ़ाई है या इतनी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं कि आप उसी में मास्टरी कर लो तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो सुपर स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, आपने सुपर स्पेशलाइजेशन आगे चल के करना होगा। अब इसको आप इंडिया से करना चाहोगे या बाहर से करना चाहोगे, ये आपने मन अपना एकदम से बना के रखना है। एमबीबीएस पास करते ही आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। मैं समझाऊंगा क्यों। देखिए, आप एमडी या एमएस इंडिया से करते हो, वो 3 साल का कोर्स होता है, और उसके बाद में 1 आध साल आप सीनियर रेजिडेंसी वगैरह जैसी चीज़ करते हो एक्सपीरियंस पाने के लिए, और फिर उसके बाद एमसीएच या डीएम, जो कि सुपर स्पेशलाइजेशन है। एमसीएच होता है सर्जिकल साइड में और डीएम होता है मेडिकल साइड में। तो इसके और 3 साल की पढ़ाई होती है और हाईली कम्पिटिटिव एंट्रेंस होता है इसका भी। तो 3 साल की एमडी, 1 आध साल की एसआरशिप और 3 साल की डीएम, तो कुल मिला के आपको 6-7 साल की पढ़ाई एमबीबीएस के बाद करनी है, और एक सुपर स्पेशलिस्ट बनने के लिए। और क्यों नहीं बनोगे भाई, आप में काबिलियत है, अपने एबिलिटी है, तो आप सुपर स्पेशलिस्ट बनोगे, आप हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट रैंक के डॉक्टर बनोगे, नाम होगा, शौहरत होगी, ज़रूरी है, और एक्सपर्टीज होगी, जो कि आज की डेट की रिक्वायरमेंट है। अब अगर आप यूएस या यूके जाना चाहते हैं आगे चल करके, या डिसाइड करना चाहते हैं, तो आपको ये समझना है कि वहाँ की जो फर्दर ट्रेनिंग है एमबीबीएस के बाद की, वो भी लगभग इतना ही समय की है। वहाँ भी आपको 6-7-8 साल लगते हैं अपनी हायर स्टडीज ट्रेनिंग पूरी करने में, और वहाँ का जो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग है वो अचीव करने में। अब देखिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ भी 6-7 साल लगते हैं, वहाँ भी 6-7 साल लगते हैं। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि यहाँ 6-7 साल की पढ़ाई करो फिर वहाँ जाओ और वहाँ फिर से पढ़ाई करो। तो आपने डिसाइड करना है कि आपने हायर स्टडीज़ यहाँ करनी है या हायर स्टडीज़ अब्रॉड करनी है। अच्छा, अगर उसमें ये भी है कि अगर आप बाहर जा कर के हायर स्टडीज़ करते हैं, तो अनटिल अनलेस यू गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम
यूएसए में उनका अपना बोर्ड है, मेडिकल बोर्ड है, यूके में अपना रॉयल कॉलेज का बोर्ड है। तो अगर आपको वहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है तो एक रिसेंट चेंज आया है एमसीआई नॉर्म्स में कि आप वापस आकर के अपने को रजिस्टर कर सकते हो और इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इंडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की है तो आपको रजिस्ट्रेशन सिर्फ फुल सर्टिफिकेशन के साथ ही मिलेगा, अदरवाइज आप ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। इसीलिए हालांकि दिस इज टू अर्ली इन योर लाइफ, बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपना माइंड मेकअप करना है। और दोनों ऑप्शंस अच्छे हैं, आप इंडिया से भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, बट इफ समवन इज एस्पायरेंट टू डू खास करके सर्जिकल स्पेशलिटीज में एफआरसीएस होता है, एफआरसीएस करना है, फेलोशिप्स करनी है, तो अब्रॉड का ऑप्शन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अब्रॉड में आपको जो है आपका पर्सपेक्टिव बदलता है, आपका होराइजन बदलता है, और आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं, ऐसी चीज़ों का प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है जो कि आपको एक अच्छा क्लिनिशियन, एक रिफाइंड क्लिनिशियन बनाता है, और जो है आपको हेल्प करता है आपकी फ्यूचर करियर में, प्रैक्टिकल मेडिसिन में। थैंक यू डॉक्टर साहब। जैसे इस समय सब लोग ऑनलाइन घर से पढ़ रहे हैं, बच्चे हमारे सुबह स्कूल करते हैं, और जो लोग नीट की या इंजीनियरिंग की या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो शाम को कोचिंग की क्लासेस भी ऑनलाइन ही चल रही हैं इस समय बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक गोइंग ऑन। तो काफी लंबे समय तक कुर्सी पर बैठना पड़ता है, चेयर पे बैठना पड़ता है। तो आप जैसे एक्सपर्ट ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट हैं, तो इसमें बैक एक होने का जो चांसेस हैं उससे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे हम लोग क्या करें? क्योंकि हम लोग ऑफिसेज भी आजकल बिल्कुल घर पे ही चल रहे हैं, कंटिन्यूसली लैपटॉप पे हम लोग भी बैठ रहे हैं, बच्चे भी बैठ रहे हैं। तो ऐसे केस में आप क्या एडवाइस करेंगे स्टूडेंट्स को खास तौर से? हाँ जी, तो देखिए बच्चों को वैसे सभी बच्चों को बैकएक नहीं होता है, मैं ये कहूँगा, लेकिन हाँ फिर भी जो लोग इस चीज़ को प्रोन है, बैकएक प्रोन है, क्योंकि कुछ लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि वो लोग बैकएक प्रोन होते हैं। तो जो लोग इस चीज़ को प्रोन है उनके लिए मेरी एडवाइस ये होगी कि पोस्चर करेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ठीक तरीके से बैठ के पढ़ाई करना, पहली चीज़ जो कोशिश करिए कि कभी सोफा पे बैठ के या बेड पे बैठ के या मतलब ज़मीन पे बैठ के, जहाँ आपकी बैक को सपोर्ट नहीं मिलता है, आपने पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई करने की कोशिश करें। आप जो है आप ज़्यादा झुके नहीं, इस करके आपका जो लैपटॉप है वो किसी भी, आप एक किताब रख लीजिए, किताब पे लैपटॉप की हाइट बढ़ा लीजिए, लैपटॉप की हाइट को अपने आई लेवल पे लाइए जिससे कि आपको ज़्यादा झुकना ना पड़े। प्लस आप जब बैठते हैं, मेक श्योर कि जो लोग बैकएक प्रोन हैं उनके लिए बता रहा हूँ, बच्चों के लिए, कि एक सिंपल सी ऐसी कार सीट आती है, ये है कार सीट। तो ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। इसमें ये कर्वेचर होता है, ये नीचे होता है, ये मोटी साइड नीचे, पतली साइड ऊपर। तो ये आप लगा करके बैठा करें अगर लॉन्ग सिटिंग है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो स्पाइन की लॉर्डोसिस होती है, जो कर्वेचर होता है, उसको ये सपोर्ट करता है। फिर इसके अलावा बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। कैसे करना है? आपको फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, आपकी आँख खुली, आप फ्रेश हुए, और आप इसको बेड पे लेट करके भी कर सकते हो। मोस्टली आपने योगा क्लासेस में देखा होगा या यूट्यूब में आप देख सकते हैं, जो एक्सरसाइजेज होती हैं, 5-7 एक्सरसाइज हैं जिनको हम स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कहते हैं, जिसमें कि आपने जैसे आपने सुना होगा मयूर आसन होता है, पवन मुक्तासन होता है, धनुष आसन होता है। तो इसमें आपने स्पाइनल पीछे की जो मसल्स हैं उसको स्ट्रेंथन करने वाली एक्सरसाइजेस 10 मिनट का टाइम देना है, ये ज़रूर करनी है। और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, इससे आपकी बॉडी का पोस्चर करेक्ट होता है, आपका बैठने का तरीका करेक्ट होता है, और बैकएक अपने आप छू मंतर हो जाता है। मैं कहता हूँ बैकएक खत्म हो जाता है, आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है, आप इन एक्सरसाइजेस को ईजिली स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस बोल के यूट्यूब वगैरह में देख सकते हो और खुद ही से कर सकते हो, कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। तो ये है इसका, एक तो आपने एक्सरसाइजेस करनी है, आपने ठीक तरीके से बैठना है, और आप
मान लीजिए आपकी क्लास चल रही है, 2 घंटे आप बैठ लिए, मेरे ख्याल से कोई भी ट्यूटर, कोई भी टीचर, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको लगातार 5-6 घंटे नहीं बैठाता है। 1.5-2 घंटे के बाद एक ब्रेक होता है, तो आपने उस ब्रेक में घूमना है, टहलना है, बैक को रेस्ट देना है और बॉडी को स्ट्रेच करना है, फिर वापस आके उसी तरीके से करेक्ट पोस्चर में बैठना है। इस चीज का ध्यान। तो लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी मूव ऑन टू द गेस्ट क्वेश्चन जो हमारे हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन लेंगे और थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया है। आपको आपने इतने साल इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे पहले इंडिया के बाहर प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आपको मतलब क्या चैलेंज फील होता है कि एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, या एक चीज और भी बड़ी इसमें, अगर आप शायद अगर टाइम है तो हम कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरी किसको कहते हैं? जैसे नॉर्मली टेनिस एल्बो हो जाती है, वो स्पोर्ट्स इंजरी है, या जो स्पोर्ट्स खेलते समय इंजरी होती है वही स्पोर्ट्स इंजरी होती है? जी, स्पोर्ट्स इंजरी जो नोमेनक्लेचर है, जो नाम दिया गया है, वो जनरली तो इसी बात को ध्यान में रख के दिया गया था कि जो स्पोर्ट्स खेलते समय इंजरी होती है उसको स्पोर्ट्स इंजरी कहा जाता है। बट समय के साथ इसका रेलिवेंस, इसका जो नाम का यूज है, वो उसका होराइजन बढ़ता गया और आज की डेट में तो आप स्पोर्ट्स नहीं खेलते हो तो ज्यादा स्पोर्ट्स इंजरी लेकर के आते हो इन डे टू डे लाइफ, है ना। उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन ये है कि जो आपका एक सर्टेन एज के बाद में, लेट्स से कि आप 40 की एज क्रॉस करते हो, मतलब कुछ तो ऑब्वियस हैं, कुछ तो स्पोर्ट्स इंजरी होती ही होती हैं। जैसे कि आप खेल रहे हो, आपका शोल्डर की बात करें तो रोटेटर कफ एक चीज होती है, रोटेटर कफ आपका फट गया, या नी में ट्विस्टिंग इंजरी हुई, आपको जो है एसीएल लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट आपका टूट गया। तो ये तो एक तरह से यू कैन लेबल देम एज टिपिकल स्पोर्ट्स इंजरीज। फिर जो दूसरी स्पोर्ट्स इंजरी की कैटेगरी है, जो कि एक्चुअली प्रैक्टिस में ज़्यादा देखने को मिलती है, वो है इस तरह की चीज़ें जैसे आपने मेंशन किया टेनिस एल्बो। अब टेनिस एल्बो कहने के लिए टेनिस प्लेयर्स को होना चाहिए था, लेकिन ये जो घर में लेडीज़ हैं, जो घर का रेगुलर काम वगैरह करती हैं, उनको, या कह लीजिए कि जो लोग लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे ज़्यादा बैठे हुए हैं, राइट हैंड का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उनको हो रहा है, या जो लोग गार्डनिंग वगैरह कर रहे हैं, ज़्यादा राइट हैंड का यूज़ हो रहा है, उनको हो रहा है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उनको टेनिस एल्बो हुआ था, जिसकी सर्जरी कराने के लिए उनको यूके जाना पड़ा। तो ये क्या है कि ये थोड़ी सी डीजनरेटिव कंडीशंस हैं। हमारी मसल टेंडन की जब डीजनरेटिव स्टेज आती है या डीजनरेशन हल्का फुल्का शुरू होता है, और उस समय जो रिपीटेड ट्रिवियल इंजरीज होती हैं इनमें, तो दैट लीड्स टू एन इंजरी कॉल्ड एज स्पोर्ट्स इंजरी इन दीज रेस्पेक्ट्स। क्या कॉमन है? टेनिस एल्बो बड़ा कॉमन है। आप अगर एक्लीज टेंडन, जो हमारे एंकल जॉइंट के पीछे का टेंडन होता है, वो बहुत बारी लोगों में स्नैप हो जाता है, टूट जाता है, और वो मतलब चलते चलते ही टूट जाता है, डीजनरेशन। तो इन सब के प्रिवेंशन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि रेगुलर एक्सरसाइज, especially after you have attained age of 40, is very very important to keep your muscles, bones strong and you yourself fit. तो क्या होगा कि आपकी मस्कुलर टेंडनस यूनिट, जिसको हम कहते हैं, अगर वो स्ट्रांग है, यानी मसल टेंडन का जंक्शन स्ट्रांग है, वीक नहीं है, और अचानक से कभी लोड पड़ा, स्ट्रेस पड़ा, तो आपको वो इंजरी नहीं होगी, क्योंकि वो लोड झेलने की उसके अंदर कैपेसिटी होगी, ताकत होगी। So this is what it is, and fortunately most sports injuries are treatable. बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो इसमें डरने की कोई नहीं है। बट हाँ, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि आप कोई भी स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हो, या फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स ही खेलते हो, तो वार्म अप एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हैं, एंड्योरेंस बिल्डिंग बहुत जरूरी है। एकदम से हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सरसाइज या हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पोर्ट आपने नहीं खेलना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू। आई थिंक आई हैव exceeded my time limit, but Abhilasha, can we take few questions from the chat or Sure, sir. It seems like we already have a few questions. Right. So our first question is from Saurabh. She wants to know a few suggestions about how to approach NEET exam. सॉरी, मैं नाम भूल गया। अभिलाषा, क्या नाम बताया आपने? कौन स्टूडेंट का नाम क्या है?
सौरजभा। सौरभ, सौरभ, ठीक है। सौरभ जी देखिए, ऑडिबल? या अभिलाषा, अच्छा ठीक है। देखिए, कोई भी एग्जाम हो, अभी आपका लाइफ में ये पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नीट एग्जाम। पहली चीज, इससे बिल्कुल डरना नहीं है। क्यों, क्या कहते हैं ना जी कि डर के आगे, तो है ना ऋतिक रोशन वाला डायलॉग, डर के आगे जीत है। डर हटाओगे, जीत आ जाएगी। समझ गए? तो पहले कोई भी एग्जाम आपको लाइफ में देना है तो उसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है। अब आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए, आप बिलीव नहीं करोगे, एमबीबीएस से लेकर के एफआरसीएस, एमसीएच करने तक मैंने 14-15 एग्जाम दिए, और ऊपर वाले का शुक्र रहा, हर एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला। एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला है किसी भी एग्जाम को बीट करने का, क्रैक करने का। तो मिस्टर झा, तो ऐसा है कि देखिए, दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका स्टूडेंट फैक्टर, स्टूडेंट का हार्डवर्क, उसकी लगन, उसकी मेहनत, उसका डेडिकेशन, उसका डिसिप्लिन। और दूसरा होता है गुरु फैक्टर, टीचर फैक्टर। स्टूडेंट फैक्टर अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ स्कोरिंग, और टीचर फैक्टर अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ स्कोरिंग। टीचर आपको, गुरु आपको सारी चीज घोट करके और दे नहीं देगा कि आप ये लो जी, ये फॉर्मूला मिल गया और एग्जाम में पास हो जाओ। गुरु क्या है? तो हमारे आदि शंकराचार्य जी ने एक बहुत अच्छा श्लोक बोला था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान महाशंकर है, गुरु ही परम ब्रह्मा है। ऐसे गुरु को मैं सादर नमन करता हूं। तो गुरु की इंपॉर्टेंस को रियलाइज करना है। आप खुश, यू आर लकी कि आज की डेट में आपके पास इतने सारे कोचिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और आप किसी भी कोचिंग को, वीएमसी ले लीजिए, कोई और कोचिंग हो, तो इन लोगों ने आपका वो 20% वाला मामला, हमारे टाइम में क्या होता था, आज से मैं मतलब 88-89 की बात कर रहा हूँ, जब एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम तैयारी करते थे, तो बहुत इतनी ज़्यादा कोचिंग्स वगैरह अवेलेबल नहीं थी। बहुत ही रेल, ऐसी कोई नामी कोचिंग तो थी ही नहीं। और कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास रीडिंग मटेरियल भी नहीं होता था। मतलब मुझे याद है कि क्या एक ब्रिलियंट ट्यूटोरियल करके कुछ नोट्स आते थे, जो कि इजीली अफोर्डेबल भी नहीं होते थे, और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ में आई तो नहीं समझ में वाली बात होती थी। तो आप लोग, यू आर ऑल वेरी लकी टू हैव अ वेरी नाइस फ्लीट ऑफ tutors who have already been assorted and provided to you by these nice coaching institutes. तो आपका 20% काम तो वैसे ही हो गया। ये गुरु आपको स्टीयर करेगा, बताएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हो, आपकी नाव समुद्र में इधर उधर हिचकोले खा रही है या सही दिशा में जा रही है। नहीं जा रही है तो ये गाइड करेंगे। तो ये तो हो गया जी इनका रोल। अब हम आते हैं स्टूडेंट फैक्टर, जो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो बातें मैंने बोली कि आपको जो है ना वो क्वालिटीज होनी चाहिए, लेकिन इन सब से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो है ना फोकस्ड हो। आपका 11th में हो आप या 12th में हो, यू हैव टू बी फोकस्ड। फोकस का मतलब क्या है कि आपको नीट के अलावा इन 2 सालों में कुछ भी नहीं, ना दिखाई देना चाहिए, ना समझ आना चाहिए, ना सुनना चाहिए। समझे इसका क्या मतलब हुआ? जैसे द्रौपदी के स्वयंवर में सारे प्रतियोगियों को पूरी मछली दिखाई देती रही और तीर नहीं मार पाए मछली की आंख पे। अर्जुन ने मारा तीर, क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ मछली की आंख दिखाई दी। आपको नीट आपके लिए मछली की आंख है। आप कमिटेड हो जाइए, फोकस्ड हो जाइए। देयर इज नो रीजन व्हाई यू विल नॉट क्वालिफाई नीट एग्जाम। पढ़ने का तरीका हमारे सौरभ जी आपको या कोचिंग वाले लोग आपको बहुत अच्छी तरह बताते होंगे, लेकिन मैं अपना तरीका बता दूं। देखिए,
कोई भी टॉपिक है, पहले तो आपने ये असेस करना है कि कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए किन टॉपिक्स पे हमने ज़्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक्स पे हमने कम फोकस करना है। वो आपको आइडिया लग जाता है, कोचिंग में ट्यूटोरियल्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, और नहीं तो आप अपने आप प्रीवियस पेपर्स उठा के कर लीजिए, यू विल गेट एन आइडिया कि आपको कहाँ फोकस करना है, कहाँ ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा जब भी आप क्लास में बैठते हैं तो क्लास में बैठने से पहले वो टॉपिक आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो टॉपिक आपका पहले से पढ़ा हुआ होगा तो आप क्लास में क्वेश्चंस, डाउट्स रेज कर सकेंगे, अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकेंगे, एंड यू आर डन। उसके बाद आप उसको कंसोलिडेट करिए, तैयार करिए। कम से कम 5, 6, 7 बार जब एक टॉपिक आप प्रिपेयर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तब आपको उसमें चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि हाँ, इसका जिस्ट क्या है, इसका सारांश क्या है, और उसके बेसिस पे आप, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जब आप एग्जाम के नज़दीक पहुंचेंगे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, इतना वास्ट कोर्स होगा, 11th का भी 12th का भी, तो आपके पास रिवाइज करने का टाइम नहीं होगा। आपकी बुक्स भी हाईलाइटेड होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स, ये नहीं कि आपने पूरी बुक रंग डाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइटर्स प्लस शॉर्ट नोट्स, जिसको आप एग्जाम के पहले जल्दी 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 रिवाइज कर सकें। एग्जाम, आपका जो नीट एग्जाम होता है, नीट एग्जाम में मुझे पता चला है कि नीट एग्जाम में आपका जो 50% मार्क्स होते हैं वो बॉटनी जूलॉजी के होते हैं। बॉटनी जूलॉजी, इट्स ए मैटर ऑफ मेमोराइजिंग थिंग्स, रिमेम्बरिंग थिंग्स। अगर आप कोर्स की विड्थ पे ध्यान दें रादर देन डेप्थ पे ध्यान दें तो आप बॉटनी जूलॉजी में मेरे ख्याल से अच्छा स्कोर कर लेंगे, मल्टीपल रिविजन्स। और फिजिक्स केमिस्ट्री में ऑब्वियसली यू हैव टू नो, है ना, कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको फार्मूलाज, आपको फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। और ये भी सुनने में आया है कि अब जैसे कि मेरे ख्याल से ये ऑल इंडिया एम्स का एग्ज़ाम नहीं होता है, सौरभ जी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शायद एक ही एग्ज़ाम होता है, नीट एग्ज़ाम, और लास्ट ईयर से खत्म हो गया है। उसी के थ्रू लास्ट ईयर से खत्म हो गया है। तो ये भी हो गया है कि जी देखिए अब जो मार्किंग है, ओवरऑल मार्क्स लोग अचीव कर रहे हैं, वो उसकी द बेंचमार्क इज गोइंग हायर एंड हायर, ज्यादा मार्क्स अचीव कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि मेरे ख्याल से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एनसीईआरटी बुक्स पे आप ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से तैयार करिए, और साथ ही साथ अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से हेल्प लीजिए, कोचिंग ट्यूटोरियल जो मटेरियल्स होते हैं उस पर ध्यान दीजिए, अपने आप को असेस करिए, मॉक एग्जाम्स लीजिए और प्रीवियस एग्जाम पेपर्स करिए, और जैसे मैंने पहले कहा कि फोकस रहना है, डिटरमिन रहना है, एग्जाम क्लियर होगा। Right, सौरभ जी। Abhilasha. Next question. Second question is by Sagar. He wants to know which is the best MBBS institute other than India. Like abroad में कौन सा institute best रहेगा for MBBS? देखिए, जो हम इंडियंस हैं फॉर्चुनेटली इतना अच्छा इंग्लिश बोलते हैं कि वी शुड बी, you know, I'm not joking, this is truth. We have the largest, youngest English speaking population all over the world, so we are very good at English. So अगर क्या होता है कि आप एक 5 कंट्रीज हैं, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड, और एक कोई कंट्री है, तो ये 4 कंट्रीज हैं जहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाई होती है, बाकी जगह पढ़ाई उनकी अपनी लैंग्वेजेस में होती है। तो अगर आपने एमबीबीएस इंडिया के बाहर कहीं करना है तो मेक श्योर यू गो टू दीज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, है ना। और अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में तो जाना बहुत मुश्किल है एमबीबीएस, यू आर टॉकिंग अबाउट एमबीबीएस आई गेस, है ना। तो यूएसए में एमबीबीएस करना इंडियंस के लिए मुश्किल है, रीज़न बीइंग कि उन्होंने जो उनका एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसको यूएस एमएटी शायद बोलते हैं, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट ऐसे कुछ नाम है, यूएस एमएटी, जो मैट टेस्ट होता है उसका सेंटर इंडिया में है ही नहीं। आपको सेंटर उसका थाईलैंड में मिलेगा, ताइवान में मिलेगा, इंडिया में सेंटर नहीं है। हाँ, आप यूके के कॉलेजेस में जा सकते हैं, यूके के कॉलेजेस के लिए आपके काफ़ी सारे टेस्ट सेंटर्स इंडिया में हैं, और कोई एंट्रेंस मतलब एक IELTS आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम देना होता है, यूके कैट होता है, वहाँ का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कुछ कंबाइंड एप्टीट्यूड टेस्ट, वो आपने क्लियर करना होता है।
तो आप यूके जा सकते हैं। यूके में बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपको कुछ नाम अगर आप चाहो तो मैं बता दूं। इंपीरियल कॉलेज लंदन है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है, और एडिनबरा यूनिवर्सिटी है, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है। ये अच्छे कॉलेजेस हैं जहां आप जा सकते हैं। बट मेक श्योर यू रिमेंबर एज टू व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर। अगर आप MBBS करने वहाँ जाते हो और वापस इंडिया में आके आपने प्रैक्टिस करनी है, तो यू वुड हैव टू क्वालिफाई एन इंडियन एग्जाम बिफोर गेटिंग रजिस्टर्ड इनटू आवर MCI रजिस्टर। इस बात का आपने ध्यान रखना है। Right. Abhilasha, any other question which we can take? One last two questions. I Yes, think. last question, like for now, Sana wants to know what's the right age for medical preparation. Right age for medical preparation. अच्छा जी, तो देखिए मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रही हैं मेरे ख्याल से सना जी। तो मेडिकल एंट्रेंस तो 12th के बाद ही होता है, और अगर मैं कहूँ कि आपको बहुत जल्दी मेडिकल प्रिपरेशन की शुरुआत करनी है तो वो भी गलत है। यू हैव टू एंजॉय योरसेल्फ। आप जो है आप 9th क्लास से, लेकिन थोड़ा सा आपने सीरियस जो है 9th क्लास से होना शुरू हो जाना है। मेडिकल को अपने टारगेट बना के या माइंड में रख करके आपने 9th क्लास से ऐसा कोई फोकस प्रिपरेशन नहीं करनी है। लेकिन हाँ, आपने 9th स्टैंडर्ड से जब हायर साइंस शुरू हो जाती है तो आपने अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करते जाना है। ऐसा ना हो कि आप जब 11th में आ जाओ और आपके 9th 10th के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है और आपको प्रॉब्लम हो। तो 9th 10th में आपको अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं, फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। और जब आप 10th में आ जाते हैं तो आप जब आप 11th में आ जाते हैं तो आपको बिल्कुल जुट जाना है। जैसे मैंने कहा, मछली की आंख को देखते हुए जुट जाना है नीट एग्जाम की तैयारी के लिए। 11th is the right time, beginning of 11th class. Correct me, Saurabh ji, I perhaps may not be the right person to comment on this, but let me have your opinion as well. I think this is the right answer which you have given. We will start from 9th and put your 100% focus from 11th. Right. Abhilasha, is there any other question which we can take or we can answer on email? I think we have exceeded the time which we have taken from. Yes. Yeah. So yes, sir. Yeah, please. So I would like to thank the audience for all the questions. However, we apologize for not being able to answer all of them. We'll try to come up with all the answers with the help of Dr. Gupta and Saurabh sir. Even when certain things feel out of control, there might still be few things you can do to make everything better. The key is to find your own best little way to handle the moment. The rest will come when it comes. As we bring our second episode of Lecture by Legend to a close, we once again thank you for allowing us to be here this evening and hope that you take along quite enriching insights with you. Before we sign off, I would love to tell you about VMC's next NAT exam, which will be conducted on 30th May. Feel free to reach out to us via email if you're interested or want to know more. We'll see you next time. Until then, take care and stay safe. Thank you, Dr. Gupta, for being with us, and thank you for this wonderful session. Thank you. Thank you, Abhilasha, for all the efforts. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Abhilasha, please Thank you, everyone. save the chat so that we can answer these questions of the students.